So today I'm going to discuss the deletion of a node in given singly linked list. In last lecture, I discussed about the insertion of a node in a given linked list. But today I'm going to discuss the deletion of a node and the assumptions for the insertion of a node, whatever we had, it will be same applicable here. So for deletion, whenever we want to delete a node in a singly linked list, so we can simply change the pointer, the previous node's pointer we can set as next node of that deleted node. So we can set the next pointer of this node A to point node C. So this is the suppose the list, singly linked list, which have been given to you, and we want to delete this node B, then we can simply set this pointer of node A to point node C. So the next pointer of the item immediately preceding to one of the node to be deleted is altered and made to point to the item following the deleted item. You can say item or node, both are same. In linked list we say node. So it will be look like this. This A जो B को point कर रहा था, now it will point to C. Now this node B become free, and then we will simply deallocate this memory chunk. So कैसे करेंगे हम? How? Again, as I said, we use this role field, and we compare this value of each node to delete that particular node. So firstly, we will take the value of node which is stored on that node, and user want to delete that node. So that value we will compare in given singly linked list, and whenever this value will be matched, that node will be deleted. If no match and the list is finished, then simply node is not found, and it will be simply announced that the node which is the user want to delete is not in the given singly linked list. So this is the simple concept. So again, just like in insertion we had, you can see here we have three conditions. It may be that user want to delete first node, user want to delete last node, or any intermediate node. In last figure, I showed the any intermediate node. Suppose user want to delete this first node, then what will be? Simply this head will point to this node B. Like suppose user want to delete this A, then this head will point to head next. हेड की करंट वैल्यू क्या है? ए को पॉइंट कर रहा है. सो हेड नेक्स्ट क्या होगा? नोड बी. So simply we can write head is equal to head next. So this head will point to node B, and then this will become free, so we can free this memory chunk. In the same way, suppose we want to delete last node, then the previous node of this last node we will set next pointer as a null, and again this memory will be free, so we can free this memory. So this is the basic concept for the deletion of node.
in a given singly linked list. Now, programming part. As an argument, we require head so that we can access the element of a linked list. Again, we are taking this R and O for taking the value from user, and this value will be matched from all node to identify the node which is we want to delete. So again, we are taking two pointer, this pointer P and Q, and the data type is again same as we discussed at the time of creation of singly linked list. So if you have any doubt, then you may see that video lecture of creation of a singly linked list. In that video, I have already discussed in very detail that how we can declare a node in a singly linked list. So I'm not going to repeat here. Here, printf delete for role means we are asking the value of the node which we want to delete. And whatever the value will be entered by the user, it will be stored. We are using a scanf function. So it will be stored in RNO variable. Now we are initializing this pointer P. So P will have same value as head have. So this P will point to the first node of singly linked list. So again, P and Q, the purpose of this both pointer is same as we had in insertion of a node in singly linked list. That is, both pointer will point to consecutive node in the singly linked list. So suppose this RNO value is matched with the very first node. P की value क्या है? Head है. So P arrow operator role is equal to RNO. If it is matched, it simply means we want to delete first node. So as I said, we can simply set head is equal to P next. आप यहाँ ये भी लिख सकते थे head is equal to head next, क्योंकि यहाँ head की वैल्यू और P की वैल्यू सेम है फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा. अब जिसको फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था P, तो ये मेमोरी आपका फ्री हो जाएगा. You know that in C language we have this function free. It simply deallocate the memory. Whatever the pointer points that memory chunk, it will be free. So this memory chunk will be deleted for the first node, and hence we can say this node is deleted. Now, suppose if it is not matched, that means we don't want to delete first node. So else part, again, this else part starts from here and ends at this point. And this curly braces is for function. This void delete function starts from here and end here. Okay. And this else starts from here and end here. Now, again, we will take a loop to move from first node to next node and next node and next node. So again, we have two conditions. P not equal to null. That means list आपकी finish नहीं हुई है. And second, P arrow operator role not equal to R and O. जो अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि या तो लिस्ट ना फिनिश हो जाए, दिस फर्स्ट कंडीशन, या किसी नोड से जो उसकी वैल्यू है उससे ये RNO वैल्यू मैच कर जाए. यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब लिस्ट भी फिनिश नहीं हुआ और ये आपका मैच भी नहीं कर रहा है, एंड ऑपरेटर है यहाँ पे.
ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब है कि P नॉट इक्वल टू नल, लिस्ट फिनिश नहीं हुआ, एंड दिस कंडीशन मतलब कि वैल्यू मैच नहीं हुआ। तो सिंपली क्या होगा, Q की वैल्यू हो जाएगी P और P की वैल्यू हो जाएगी P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, यानी P अब सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, Q अब फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। यदि नेक्स्ट टाइम भी नहीं मैच किया तो Q फिर सेकेंड को पॉइंट करेगा और P फिर थर्ड को पॉइंट करेगा, एंड सो ऑन। एक एक करके दोनों ही Q और P कंसेक्यूटिव नोड्स को पॉइंट करेंगे। तो पहली बार जब यदि सपोज फर्स्ट नोड का नहीं मैच किया तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स पार्ट में फिर P सेकेंड को और Q फर्स्ट नोड। फिर यदि नहीं आपका मैच किया और लिस्ट भी फिनिश नहीं हुआ तो फिर P थर्ड को और Q सेकेंड को, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। अब दो कारणों से ये लूप ब्रेक हो सकता है। पहला तो कंडीशन ये हो सकता है कि लिस्ट फिनिश हो जाए। लिस्ट फिनिश हो जाएगा मतलब P इज इक्वल टू नल, और P इज इक्वल टू नल तो आप देख रहे हैं ये कंडीशन P नॉट इक्वल टू नल ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है ये एंड ऑपरेटर है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। उस केस में यदि P इज इक्वल टू नल है तो इफ P इज इक्वल टू नल इट मींस लिस्ट आपकी फिनिश हो गया और किसी भी एलिमेंट को आपने डिलीट नहीं करना है, तो एलिमेंट वी विल सिंपली राइट एलिमेंट नॉट फाउंड एंड नो मैच, डिलीशन फेल्ड। यदि किसी से वो मैच करता है तो P एरो ऑपरेटर रोल नॉट इक्वल टू RNO ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा P रोल इज इक्वल टू RNO, तो उस समय भी ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट है तो फिर ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर एल्स इफ P एरो ऑपरेटर रोल RNO ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्यों लूप ब्रेक हुआ है, किसी नोड से वैल्यू मैच की है। उस केस में कोई भी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, चाहे वो आपका मिडिल का एलिमेंट हो चाहे लास्ट का एलिमेंट हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, P से मैच की है वैल्यू, P एरो और ऑपरेटर रोल इससे इसकी वैल्यू मैच की है, तो सिंपली हम उसको फ्री कर सकते हैं। और सॉरी ये फ्री एरो ऑपरेटर P दिस विल कम आफ्टर दिस स्टेटमेंट, so this free P will come after this one. Okay, now so P एरो ऑपरेटर रोल इज इक्वल टू RNO ये मैच किया, तो क्या होगा कि हम सिंपली क्या करेंगे, Q नेक्स्ट इज इक्वल टू P नेक्स्ट। तो जो प्रीवियस नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा किसको, P नेक्स्ट। तो जो आपका नेक्स्ट नोड है जिसको हमें डिलीट करना है उसकी वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी, P एरो ऑपरेटर नेक्स्ट को, तो उसको पॉइंट करेगा जो उसका प्रीवियस नोड है दैट इज Q नेक्स्ट। मैं आपको फिगर तक ले चलता हूं, दिस वन P मान लो इसको पॉइंट कर रहा है, इसको आपको डिलीट करना है, और इसके पीछे नोड कौन सा है, Q। तो Q इसको पॉइंट करेगा, P इसको पॉइंट करेगा, यहां पे मैच किया है आपका, इसको डिलीट करना है। तो Q नेक्स्ट दिस वन इज इक्वल टू P इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, P नेक्स्ट दैट इज C। तो Q नेक्स्ट इज इक्वल टू P नेक्स्ट, तो A का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा C को। इन अ सेम वे यदि लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हो तो यदि ये हो गया P ये हो गया Q, तो Q नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब इस P का P नेक्स्ट क्या है, नल, ये पॉइंटर क्या है, दिस इज नल, तो ये नल वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी और C भी डिलीट हो जाएगा। तो इन दिस वे ये कंडीशन मिडिल एलिमेंट को भी डिलीट कर देगा ये कोड, और लास्ट एलिमेंट नोड को भी डिलीट कर देगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया कि Q नेक्स्ट इज इक्वल टू P नेक्स्ट, जो प्रीवियस नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा
जो नेक्स्ट नोड है उसको। सो क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, और फिर हम इस पी को डिलीट कर देंगे। ये गलती से यहाँ पे था, मैंने इसीलिए करेक्ट कर दिया। उसके बाद जब ये पॉइंटर आपका सेट हो जाएगा, उसके बाद ये मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक है, सो देन अब तक हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंसर्शन पढ़ा था, आज हमने डिलीशन पढ़ा है, और इंसर्शन के पहले वाले वीडियो में हमने क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ा था, और ये डिस्प्ले फंक्शन पढ़ा था। डिस्प्ले फंक्शन मतलब ट्रैवर्सिंग के लिए। तो 2 लेक्चर पहले हमने क्रिएशन पढ़ा और ट्रैवर्सिंग पढ़ा, उसमें क्रिएट लिस्ट और डिस्प्ले फंक्शन पढ़ा था। लास्ट वीडियो में इंसर्शन पढ़ा था, और आज हमने ये डिलीशन पढ़ा है। तो इन तीनों को ही हम एक साथ यदि कंबाइन कर लें, तो मेन फंक्शन के अंदर हेड आपने इनिशियलाइज किया, और फिर एक लिस्ट आपने क्रिएट कर लिया, लिंक लिस्ट। उसको आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी नोड को आपने इंसर्ट करना है, तो हेड को आपने पास कर दिया, और वहां पे नोड इंसर्ट कर सकते हैं। जो इंसर्टेड नोड है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो डिस्प्ले फंक्शन आप अगेन कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले फंक्शन मींस ट्रैवर्सिंग। अगेन आज हमने जो डिलीट फंक्शन पढ़ा, इसको डिलीट करने के लिए इसको कॉल कर सकते हैं। डिलीटेड नोड डिलीट हुआ कि नहीं उसको आपने देखना है, तो अगेन दिस डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट। तो हमने अब तक डिस्कस किया 3 वीडियो लेक्चर्स में, प्रीवियस 2 वीडियो और आज के उसमें, कि किस तरह से एक सिंगली लिंक लिस्ट को हम क्रिएट करें, ट्रैवर्स करें, एक नोड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट। In next lecture, I will start same discussion with doubly linked list, and after that circular linked list. So thank you very much.